I welcome all of you in physics classes. This session is for class 10 and we are studying chapter 2, magnetic effects of electric current. In this chapter I have already introduced the concept of electromagnetism. That what does it mean by magnetic effects of electric current? That means whenever the electric current is passed through any of the wire, around that wire there will be a small amount of magnetic field, or around that wire there will be an amount of magnetic field. This phenomenon is only known as magnetic effects of electric current. Because of current only the magnetic field is produced around a wire, around a conductor, is known as magnetic effects of electric current. Then afterwards I have explained you about the magnetic field, magnetic force and the different related topics to it. Today we will discuss the nature of magnetic field around a straight current carrying conductor as well as a circular loop. So first of all we will discuss the amount of magnetic field, or first we will discuss the magnetic field nature around a straight current carrying conductor. Okay? Children, if we consider a straight wire, in this straight wire, if the current is passing either towards upward or it may be downwards also, it depends that when we connect the wire with any of the supply, and in the previous chapter we have studied what is the direction of electric current from positive terminal to negative terminal. So tell me here, what is positive? This is positive, this is negative. The current will start from here. This is a wire, suppose if we consider. This is a wire A, B, okay? And that wire we have connected with the supply cell or supply battery, through which we can find out what is the direction of electric current through the wire. Either it is upward or towards down. Before I start this topic, the concept of this magnetism due to current flowing through any conductor we should understand. Scientist Oersted had, he has done an experiment. The experiment he has done, he has taken a compass. All of you are aware of this compass, no? With the help of this compass, he observed that if the current is passed through this wire, then there is a deflection in the compass needle. Usually, what is the direction of the compass needle? North, south. Correct, no? You know this about compass, no? Whenever we pass the electric current through this wire, we observe that there is a deflection in the compass needle from north-south direction towards east and west. Correct? As we stop current, suppose if I connect a switch here, now the switch is connected, okay? Now as we switch off the current here, there will be no current in this wire, then suddenly we can observe the compass needle shows its deflection towards north and south. That means its actual position. What do we understood with this experiment, and the scientists Oersted had experiment this understood? If current is passed, we can observe the deflection in the compass needle, and if there is no current in the wire, there is no deflection. On what principle the compass needle works? Because of magnetism. That means compass needle changes its direction if this compass needle will experience a certain magnetic force, then it will change its direction. Correct? If there is no current, there is no deflection in the compass needle. If there is a current in the wire, then there is a deflection in the compass needle. What does it mean? It means as we pass the electric current in this wire, because of magnetic field around this wire, this compass needle deflects. And it proves also, whenever we pass the electric current through any of the wire, around that wire there will be a magnetic field, which signifies the name of this chapter, magnetic effect of electric current. आप में से कुछ बच्चों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि सर अगर आपके लेक्चर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्सअप हो तो इट विल बी बेटर फॉर अस. तो आप समझ लीजिएगा, मैं दोनों लैंग्वेजेस में आपको समझा देता हूँ.
इन दिस चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाए तो इलेक्ट्रिक करंट को पास कराने की वजह से क्या उस वायर के चारों तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इसी इफेक्ट को कहा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस बात को प्रूफ किया साइंटिस्ट ऑरेस्टेड ने, और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या लिया, एक कंपास लिया और उस कंपास को एक वायर के बहुत क्लोज रखा। जब उस वायर में कोई भी करंट पास नहीं कराई गई तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उस कंपास निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसा मैग्नेटिक फील्ड नहीं था जो कि उस कंपास निडल को इंटरप्ट कर रहा हो, डिस्टर्ब कर रहा हो। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया गया, कंपास निडल में एक डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व किया गया। कंपास निडल चेंज हो गई अपनी एक्चुअल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन से। और क्यों चेंज हुई? क्योंकि इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट के पास कराते ही इस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस तरीके के जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर जो कंपास निडल का जो एग्जांपल था, जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई हो जाता है कि अगर किसी वायर में, किसी कंडक्टर में करंट को पास कराया जाए तो उस कंडक्टर के, उस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। हम आज जानेंगे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। किन किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है और किस तरीके से इसको एनालाइज करेंगे, ये समझिएगा। तो we have considered a wire AB. In this wire we have connected with a supply source along with the switch. Then as we put on the switch, in that situation the current will pass from positive terminal to the negative terminal of the battery. So in this case, as we have connected the wire AB here, we can see the current is going upward. That means from A to B. करंट कहां से कहां तक जा रही है? A से लेकर के B तक। तो करंट इज गोइंग टुवर्ड्स अपवर्ड। ठीक है ना? इस सिचुएशन में जब ये एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किया गया, परफॉर्म किया गया, तो ये देखा गया कि जैसे ही करंट AB वायर में पास होती है, इस वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होता है। ये एक सर्कुलर फॉर्म में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है अराउंड द वायर, अगर वायर कैसा है? स्ट्रेट है। अगर वायर ये स्ट्रेट है तो इस स्ट्रेट वायर के चारों तरफ ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो आपको बनाए दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो है ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इन सर्कल का सेंटर कहां पर होगा? उस वायर पर होगा। कहां पर होगा? वायर पर होगा। बात समझ में आ रही ना? अगर कभी भी किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू करंट को पास कराया जाएगा तो उस करंट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो कि सर्कुलर होगा नेचर में। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपको दिखाई पड़ रहा है, दिस इज द नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इफ एनीवन आस्क यू कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, देन यू कैन से दैट thus around due to a straight current carrying conductor the magnetic field will be in concentric circles. The magnetic field will be circular in nature around the wire. ठीक है ना? whose center lies on the wire. जिसका सेंटर कहां पर होगा? वायर पर होगा। बात सभी को समझ में आ रही है? ठीक। सवाल ये उठता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से हमने यहाँ पर ड्रॉ करनी है, ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? सबसे पहली बात, किसी भी वायर में पास की जाने वाली इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उस वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी नंबर 1 डिपेंड करती है किस पर? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर। जो करंट आप इस वायर में पास करा रहे हो, अगर उसका मैग्नीट्यूड कम होगा तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो भी कम होगी। और अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ा देते हैं, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड के बढ़ जाने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड द वायर होगी वो भी बढ़ जाएगी। तो सीधे सीधे ये कहा जा सकता है
कि the intensity of magnetic field around a straight current carrying conductor is always directly proportional to the strength of electric current. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका इलेक्ट्रिक करंट अगर आपका मैग्नेटिक कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक भी कम होगा। दूसरी बात यह है कि ये डिपेंड इस बात पर भी करता है कि हम वायर से कितनी दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी जेन्युइनली समझने वाली बात है कि अगर हम वायर के बहुत पास में होंगे तो जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा वो सबसे ज्यादा लग रहा होगा। हम वायर से दूर हटते जाएंगे मैग्नेटिक फोर्स कम होता जाएगा, और दूर हटेंगे मैग्नेटिक फोर्स और कम हो जाएगा, और दूर हटेंगे मैग्नेटिक फोर्स और कम हो जाएगा। तो अगर हम धीरे धीरे उस वायर से स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से अवे मूव कर रहे हैं, उस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। कैसा रिलेशन हुआ? इनवर्स रिलेशन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। इस वायर से कितनी दूरी पर आप मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड इस बात पर भी डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, व्हाइल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। ठीक है ना, समझ में आ गई सभी को बात? चलिए, यहां तक तो कहानी बिल्कुल क्लियर थी कि मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ कैलकुलेट करेंगे तो वो सर्कुलर फॉर्म में होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म करेंगे। अब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स तो आपके क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं ना, क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं। Children, in this chapter the concept of direction is very very important. ठीक है ना, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स तो आपको पढ़ने नहीं है ना, न्यूमेरिकल्स का जो चैप्टर था पिछला वाला, वो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को हमने पढ़ लिया। अब इस चैप्टर में ना ही कोई न्यूमेरिकल है, जो हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसमें भी कोई न्यूमेरिकल्स आपको नहीं पढ़ने। लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ऐसे चैप्टर्स जिनमें न्यूमेरिकल पोर्शन कम होता है उनमें कॉन्सेप्चुअल पोर्शन बहुत होता है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे सिग्निफाई करेंगे, कि वेदर दीस सर्कल्स आर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आ रही है ना? क्या ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्लॉकवाइज होंगे या एंटी क्लॉकवाइज होंगे, इसका पता लगाने के लिए वी शुड टेक अ रूल। एंड व्हाट रूल इज दिस? द रूल इज मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। शोस थम्स अप। ओके, इट इज मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। इसे राइट हैंड थंब रूल भी कहा जाता है। इस रूल को हम लोग यूज करते हैं किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ जो प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को सिग्निफाई करने के लिए। ठीक है ना, राइट हैंड स्क्रू रूल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? राइट हैंड स्क्रू रूल। वेरी सिंपल टू डिफाइन ऑल्सो, लाइक दिस इज अ वायर, and this wire if I hold into my right hand, can you see this? If this wire I hold into my right hand, then the thumb which points the direction of upward, this thumb shows upward direction. क्या ये जो thumb है मेरा, ये upwards को represent कर रहा है ना? या अगर मैं इसको इस तरीके से चेंज कर दूं, क्या आप मेरा ये thumb downwards direction को represent कर रहा है? वायर कैसा हो सकता है? स्ट्रेट यहाँ पर है और उस स्ट्रेट वायर में करंट की डायरेक्शन या तो डाउनवर्ड्स हो सकती है या अपवर्ड्स हो सकती है ना। ठीक है, अब आपने यहाँ पर ये जो फिंगर्स एनसर्कल कर रखे हैं इस वायर के चारों, जिससे आपने इसको पकड़ रखा है, ठीक है ना, थंब को आप ऐसे रखेंगे। इस राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जो आपका थंब है वो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये करंट अपवर्ड है या डाउनवर्ड्स। ठीक है ना, और ये फिंगर मैंने एनसर्कल कर रखी है, ये फिंगर्स, ठीक है ना, ये फिंगर्स जो एनसर्कल मैंने कर रखी है ये रिप्रेजेंट कर रही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। और साफ साफ आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर थंब अपवर्ड है तो ये फिंगर्स है मेरी इस तरीके से, यही तो रोटेशन हुआ, और ये कैसा हुआ? एंटी क्लॉकवाइज हुआ।
कैसा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। अब मैंने थंब को नीचे की तरफ कर दिया, यानी कि अब करंट डाउनवर्ड से आ रही है, तो क्या क्लॉकवाइज दिखाई पड़ रहा है आपको? बहुत सिंपल सा रूल है, यानी कि अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड जो अराउंड द वायर होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और अगर आपकी करंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स डाउन है तो ये दिखाई पड़ रहा है। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट यहाँ पर? तो ये रिप्रेजेंट इस बात को करता है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ जो प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम लोग उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी डायरेक्शन को हम लोग पता लगा सकते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से। एंड आई हैव टोल्ड यू दैट इफ वी होल्ड अ वायर थ्रू व्हिच द करंट इज पासिंग, that if we hold that wire into my right hand, then the thumb represents the direction of electric current, while the fingers encircle represents the direction of magnetic field around it. It may be the clockwise or in anti-clockwise. तो इस फिगर में आप आसानी से मेंशन कर सकते हैं ना, अगर करंट अपवर्ड जा रही है तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है ना? तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप इसको मेंशन कर देंगे इस तरीके से। क्लियर है ना? क्लियर है ये बात? ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, हमने समझ लिया कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ जो होता है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होता है, और ये कंसेंट्रिक सर्कल जो के दो फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड करता है, दूसरा डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रॉम द वायर। वायर से कितनी दूरी पर आप मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर रहे हैं इसके हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसके लिए हम लोगों ने एक रूल अपने आपको बताया, दैट रूल इज मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, या इसको हम राइट हैंड स्क्रू रूल भी कहते हैं। और इस स्क्रू रूल से या राइट हैंड थंब रूल से हम पता लगा सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। अभी तक वायर कैसा था? स्ट्रेट था। कैसा था? स्ट्रेट था। अब वायर कैसा है? सर्कुलर। कैसा है? सर्कुलर। अगर ये सर्कुलर वायर ले लिया जाए, ये सर्कुलर वायर दिखाई पड़ रहा है ना आपको, ठीक है? अब इस सर्कुलर वायर में अगर करंट फ्लो कर रही है, सवाल ये आता है कि अब स्ट्रेट वायर का तो हमको पता लग गया था कि अगर वायर अपवर्ड करंट जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, नीचे की तरफ आ रही है तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगा। सर्कुलर वायर के केस में कैसे पता लगाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कैसा होगा? बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से समझ कर ही आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। आप सभी को पता है कि अगर करंट अपवर्ड जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होता है, जब करंट डाउनवर्ड्स आती है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होता है, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलर वायर है और सर्कुलर वायर में दोनों सिचुएशन जो होती है फुलफिल होंगी। कैसे? चाहे ये वाला फिगर ले लीजिए, चाहे एक फिगर में हमारे यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, उसकी बात समझ लीजिएगा, फिर मैं इससे भी समझा दूंगा क्योंकि आपने नोट्स में ये वाला फिगर बनाया है। देखिए, क्या ये एक सर्कुलर वायर है जिसको कि मैंने एक सप्लाई से कनेक्ट किया, तभी तो इसमें करंट अपवर्ड जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी ना। चलो, अब यहां पर मान लीजिए मैं यहां पर लेना चाहता हूं आउटपुट इसका, ये तो कार्डबोर्ड है और इस कार्डबोर्ड से मैंने सर्कुलर वायर को पास कराया है ना। जैसे समझ लीजिए अगर मैं लूँ कि कोई भी कार्डबोर्ड मैंने ले लिया, ये कोई कार्डबोर्ड है और ये वायर मैंने यहाँ से लेकर के और यहाँ इस तरीके से पास करा दिया, ठीक है? तो इस कार्डबोर्ड से मैंने इस वायर को पास कराया है जिससे कि आपको ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करने में आसानी रहेगी, बस सिर्फ इसलिए इसका यूज किया और कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन को तो बहुत आसानी से मेंशन किया गया है यहाँ पर कि करंट पॉजिटिव से जा रही है और नेगेटिव तक आ रही है।
ठीक है। क्या यहाँ पर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है या नहीं है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर करंट अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड इसका एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वही जो हमने पिछले वाले केस में पढ़ा था ना। यहाँ पर करंट डाउनवर्ड्स आ रही है, तो यहाँ पर कैसे बनेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, लेकिन बनेगा वैसा ही, कैसा, वही कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो हमने भी पढ़े थे, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं जैसे जैसे हम वायर के पड़ोस में जा रहे हैं वैसे वैसे तो बड़े क्लोज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, और जैसे जैसे हम वायर से दूर हटते चले जा रहे हैं, मतलब इस वायर से दूर होते चले जा रहे हैं, टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बड़े होते जा रहे हैं, है ना, और उनका कर्व जो है वो फ्लैटन होता चला जा रहा है। और एग्जैक्टली सेंटर पर, यानी कि जो भी सर्कुलर लूप है उस सर्कुलर लूप के सेंटर पर, यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी देखूंगा या नेचर देखूंगा तो कैसा हो रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। यानी कि इस सर्कुलर लूप के केस में जो स्टेटमेंट सामने निकल करके आ रहा है वो क्या निकल करके आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप इज सर्कुलर इन नेचर एज वेल एज स्ट्रेट इन नेचर। दोनों ही सिचुएशंस हैं, लेकिन कहां पर सर्कुलर होगा और कहां पर वो स्ट्रेट रिप्रेजेंट करेगा, ये पोजीशंस दोनों अलग अलग हैं। नियर द वायर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज सर्कुलर इन नेचर, करेक्ट, जैसे यहां पर है, ठीक है। और जैसे जैसे मैं वायर से दूर हो रहा हूं टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ जा रहा हूं, और सेंटर पर जैसे ही देखा मैंने, सेंटर पर जाकर के वो मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कैसा हो गया, स्ट्रेट। अरे सीधा सा हिसाब है, अगर वायर आपका स्ट्रेट था तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर था, अब वायर सर्कुलर है तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, स्ट्रेट होगा ना। तो यहाँ पर देखिएगा हमने जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए हैं, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नियर द वायर है, मतलब करंट यहाँ से अपवर्ड जा रही है तो यहाँ पर तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे, और जैसे जैसे मैं सेंटर की तरफ मूव कर रहा हूँ वैसे वैसे मेरे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो है बड़े हो रहे हैं और फ्लैटन होते चले जा रहे हैं, और सेंटर पर एग्जैक्टली सेंटर पर मैंने क्या देखा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट्स स्ट्रेट, इट इज स्ट्रेट। अब जो दूसरा वाला फिगर मैंने आपको बना के दिया है उसको भी समझ लीजिएगा, बिल्कुल यही केस है। ये मान लीजिए आपका कोई सर्कुलर वायर है ना, सर्कुलर वायर, तो यहाँ पर तो आपका नियर द वायर तो आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही बनाएंगे नहीं बनाएंगे, बनाइए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इस तरीके से, और जो सेंटर में आप ड्रॉ करेंगे वो कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। समझ आ रही है ना। तो दिमाग में एक बात सेट रखिए, अगर करंट स्ट्रेट जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगा नेचर में, और अगर करंट सर्कुलर है तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी स्ट्रेट इन नेचर, ठीक है। यहां पर भी जो आपका अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो हमने ड्रॉ कर दिया कि व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इस नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बाद में हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नीट्यूड जो इसका यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है सर्कुलर वायर की वजह से, ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, जैसे हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या समझा था कि जैसे जैसे हम वायर से दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती चली जा रही है। साथ ही साथ क्या था कि उस वायर में कितनी इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है इस बात पर भी डिपेंड करता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सर्कुलर वाले केस में भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उस इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और दूसरा जो है उस रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो रेडियस पर भी जो होगा वो डिपेंड करेगा, यानी कि रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हमने आपको बहुत क्लियर कट फॉर्म में बताया कि अगर हम वायर के पास में हैं तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, वायर से दूर जाते जा रहे हैं तो स्ट्रेट बनता चला जा रहा है। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये समझ में आ रहा है कि जितनी ज्यादा रेडियस होगी उतना ही कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। सेंटर पर अगर मैग्नेटिक,
ये बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है जो हमने स्ट्रेट के लिए यूज किया था, बस क्योंकि यहाँ पर ये सर्कुलर है, रोल ऑफ डिपेंडेंसी यहाँ पर भी वही दोनों है। कौन कौन सी? एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है और दूसरा आपकी डिस्टेंस है। हम वायर से जितना दूर हटते चले जाएंगे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप के। बस इतना इसमें यूज किया जाता है सर्कुलर लूप के केस में। तो क्या आपको दोनों ही बातें समझ में आई? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए और सर्कुलर लूप के लिए, दोनों के लिए मैंने आपको मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया कि इनका नेचर क्या होगा और किस तरीके से किन किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करेगा, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है ना। हमने रूल भी बताया कि स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर के लिए किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज होगा, इसका पता हम कैसे लगाते हैं? बाय यूजिंग द मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। एक रूल आप सर्कुलर के लिए भी अलग से समझ लीजिए, ठीक है ना। क्लॉक फेस रूल है और बहुत सिंपल सा रूल है कि हम किस फेस को नॉर्थ पोल कंसीडर करेंगे। भाई क्योंकि अगर मैग्नेट है तो मैग्नेट का एक पोल नॉर्थ पोल होगा और एक पोल साउथ पोल होगा। कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा पोल नॉर्थ पोल है, कौन सा पोल साउथ पोल है? मान लीजिए अगर आपने कोई मैग्नेट लिया है ना, अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की चीज की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कौन सा पोल नॉर्थ पोल होगा, कौन सा पोल साउथ पोल होगा, ये कैसे पता लगाएंगे? ये पता तो तभी लगा पाएंगे ना जो आपका करंट इसमें फ्लो हो रही है उसके नेचर के बेसिस पे तो पता लगा पाएंगे। तो देखिएगा किस तरीके से हम पता लगाते हैं, बाय यूजिंग द क्लॉक फेस रूल। बाय यूजिंग द क्लॉक फेस रूल, सिंपल सा रूल है क्लॉक फेस रूल, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बताओ साहब ये कैसा रोटेशन? ये जो रिंग मैंने यहां पर ड्रॉ किया, ये इस रिंग में रोटेशन कैसा है? क्लॉकवाइज है ना, है ना, क्लॉकवाइज। और अगर क्लॉकवाइज में अगर मैं कोई यहाँ पर लेटर बनाता हूँ तो वो कौन सा लेटर बनेगा? एस बन रहा है। तो ये एस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो आपकी जो डायरेक्शन शो कर रही है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो कर रही है। मतलब साफ है, मतलब ये है कि अगर किसी फेस पर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज फेस में है या क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है सर्कुलर लूप में, तो सर्कुलर लूप का वो वाला फेस जो होगा वो साउथ पोल कंसीडर किया जाएगा। कैसा कंसीडर किया जाएगा? साउथ पोल। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक दूसरा रूल बना दूं, अब ये कैसा है? ये एंटी क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए कौन सा फेस होगा? एन दिखाई पड़ रहा है, नॉर्थ पोल होगा, ठीक है ना। ये क्लॉक फेस रूल है। क्लॉक फेस रूल का मतलब क्या होगा कि अगर आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट की तो वो पोल आपका साउथ पोल हो जाएगा, और अगर आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट की किसी फेस पर तो वो वाला फेस आपका नॉर्थ पोल कंसीडर किया जाएगा। बात समझ आ रही है? आज हम लोगों ने 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं, इनको आप रिवाइज करिए और रिवाइज करने के बाद ही फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। बात समझ आ रही है ना? तो प्लीज रिवाइज योर चैप्टर with your NCERT book as well as the notes what I am providing to you. Notes are available on in the WhatsApp group. You can download from there, as well as on the app also. I am uploading the notes. You can download from the app also. Okay. So for today it is sufficient. Stay home, stay safe. Thank you very much.